عمر 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 کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزان، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعثرت العوالم بكل ذكره ورضاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور آج سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر یہاں جمع فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج جمعہ کی خصوصیت کے ساتھ ایک اور خصوصیت شامل ہے کہ آج اسلامی تاریخ کے لحاظ سے سال کا پہلا دن ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ آج کے دن سے 1447واں سال شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور خصوصیت اس دن کو رکھی ہے کہ جب بھی سال کا یہ پہلا دن آتا ہے تو اسلام کے عظیم الشان فرزند حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے۔ محرم کی اسی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ سال کا پہلا دن آتے آتے ہی ایک انتہائی اہم پیغام کو لے کر ہمارے درمیان آتا ہے کہ آج کا ایسا یادگار دن ہو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہو تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہوگی۔ اتفاق سے آج جمعہ کا دن بھی ہو گیا جس میں لوگ کثرت سے جمع ہوتے ہیں، تو آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے اپنے بات کی آغاز کریں گے اللہ کے حول و قوت سے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت دی ہے جو کسی بھی ایمان والے کو، کسی مسلمان کو شاید نصیب نہیں۔ وہ خصوصیت یہ ہے، صرف ہم اس بات پہ غور کریں گے کیونکہ جمعہ کا وقت مختصر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکیں گے، صرف اتنے بات پہ ہم آج بات کریں گے، غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ خصوصیت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی ہے کہ ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے، مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ اسلام قبول کرے گا تو اس کو اس کی ذات کو فائدہ ہوگا دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، مگر آپ کی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی اور فائدہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ طیبہ کا اعلان فرمایا تو لوگ ذوق در ذوق ابتدا میں بہت سے وقفے سے مسلمان ہوتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا کی تھی، جمعرات کا دن تھا، اور ایک خصوصیت دیکھیے، حضرت عمر جو ایمان لائے ہیں، جس دن کلمہ پڑھے ہیں وہ دن بھی جمعے کا تھا، اور جس دن شہادت ہوئی وہ دن بھی ایکم محرم تھا، لیکن دن جو ہے وہ جمعے کا نہیں تھا، لیکن آج تذکرے کے لیے جمعہ کا دن ہمیں مل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہاتھیں اٹھ جاتی ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام۔ کیا الفاظ ہے حضور کے، فرماتے ہیں اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، بہذین الرجلین بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین، ایک روایت آتی ہے حضور نے فرمایا اے اللہ تو جن دو بندوں میں سے جن کو تو پسند فرماتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے، تو ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ فأحبہما عمر بن الخطاب، پھر وہ دونوں میں سے اللہ کے محبوب اور پسندیدہ کون ثابت ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دعا حضور کی ہونا تھا، دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ اب یہاں غور یہ کرنا ہے کہ حضور نے اسلام کو عزت دینے کے لیے دو آدمیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بطور چوائس اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائی۔ یہ فرمایا اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے کون ایسا انسان ہے، کون ایسا بندہ ہے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں اور جس کے ذریعے سے آپ اسلام کو عزت دیں گے؟ یہ دونوں میں سے کون ہے وہ؟ یہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کون سی خوبیاں عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے حضور نے ان دونوں کو سامنے رکھ کے فرمایا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام عطا فرمائیے؟ وہ بات کیا تھی؟ جو خوبیاں اسلام کو، مسلمانوں کو فائدہ دینے والی ہے، وہ دو خوبیاں حضرت عمر میں اور ابو جہل میں دونوں میں برابر تھے۔ ابو جہل کو اسلام نصیب نہیں ہوا، وہ مسلمان نہیں ہو سکا، اس کو آقا دو جہاں کی صحبت و سنگت میسر نہیں ہوئی۔ یہ دونوں میں وہ کون سی ذاتی فطری خوبیاں تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تھا؟ دونوں میں طاقت اور قوت بہت بہترین انداز کی تھی۔ طاقت اور قوت میں دونوں اچھے تھے، مال و دولت میں بھی دونوں بہتر تھے، حسب و نسب میں بھی بہتر تھے، سرداری میں بھی دونوں بہتر تھے، پڑھنے لکھنے میں بھی دونوں بہتر تھے، بہادری میں بہتر تھے، سخاوت و شجاعت میں دونوں بہتر تھے۔ جس طرح کی طاقت و قوت اور خوبصورتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، ابو جہل کو بھی تھی۔ حضرت عمر بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، ابو جہل بھی پڑھا لکھا تھا۔ حضرت عمر کے اندر بھی فیصلہ کرنے کی بہترین صلاحیت آپ کو بچپن سے تھی، ابو جہل کو بھی ویسی ہی فطرت تھی، وہ خوبی اس کے اندر بھی تھی، سخاوت کرنا اور اسی طرح سے بہادری اور اپنے بات کو منوانا، یہ جو کوالٹیز ہے، خوبیاں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھی اور ابو جہل میں بھی یہ ساری خوبیاں تھی۔ حضور پاک نے فرمایا اسلام کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، ایسے مرد کی ضرورت ہے، ایسے مرد مجاہد کی ضرورت ہے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہو۔ یہ ساری خوبیاں ابو جہل میں بھی ہے، حضرت عمر میں بھی ہے۔ اب بتائیے دونوں میں سے حضور فرما رہے ہیں اللہ یہ دونوں ذاتی کمالات ہونے کے باوجود تو کن کو پسند فرماتا ہے؟ میں بہت اہم بات کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہری طاقت اور پڑھ لکھ کر ہونا اور سرداریاں ہونا، اس سے انسان اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتا۔
अच्छा पैसा है तो हम ये समझते कि भाई अब मैं जो चाहे कर सकता हूं। सिर्फ पैसा होने से वो पैसा उसको दीनदार नहीं बना सकता, सिर्फ ओहदा होने से वो ओहदा उसको दीनदार नहीं बना सकता, उसके अंदर ताकत और कुव्वत होने की वजह से वो दीनदार नहीं बन सकता। पैसा होना और वो पैसा अल्लाह की राह में कुर्बान होना, खर्च होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। बहुत से लोगों के पास पैसा तो है मगर वो पैसा उनको राह हक में काम नहीं आता, उनको ये तौफीक नहीं मिलती कि इस पैसे से वो अल्लाह के राह में कुर्बान हो सके। बहुतों के पास अच्छी सेहत और ताकत होती है मगर उनकी वो सेहत और ताकत उनको राह हक में कुर्बान होने नहीं देती। यानी वो चीजें दुनियावी चीजें है बहुतों के पास मगर वो चीजें उनको दीन की तरफ या दीन में मददगार बनने नहीं देती। पैसा होना कमाल नहीं है, उस पैसे को अल्लाह के राह में लगाने की तौफीक मिलना ये कमाल है। ताकत होना कमाल नहीं है, ताकत का अल्लाह के राह में इस्तेमाल होना ये कमाल है। बहुत से लोग खाली बैठे रहते हैं घर में, काम तो नहीं होता, उसके बावजूद भी इनको नमाज की तौफीक नहीं रहती। बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा होता है मगर उनके सामने राह हक में खर्च करने के मौके भी आते हैं मगर उनको तौफीक नहीं मिलती। इस तरह से बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसी खूबियां हैं, सहूलतें हैं, जिनकी वजह से वो इस्लाम में अल्लाह की राह में काम कर सकते हैं मगर तौफीक नहीं होती हर एक को। ये गौर करने की चीज है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा तो नहीं होता मगर अल्लाह तबारक व तआला उनको जितना दिया है उतने पैसे से वो अल्लाह के राह में अपने आप को, अपने पैसे को कुर्बान कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ ये एक अजीब मंजर बता रहा है। हुजूर फरमा रहे हैं कि ये दोनों के अंदर क्वालिटीज बराबर है मगर अल्लाह इन दोनों में इन जाहिरी खूबियों के असबाब के होने के बावजूद आप किसको पसंद फरमाते हैं? तो अल्लाह ताला ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की दौलत दी। अब आइए एक और अहम बात की तरफ। जो लोग बाद में आएंगे जुमे में उनको फायदा ही नहीं है, ये टॉपिक आखिर में सुनेंगे तो फायदा नहीं है। खैर वो ये अल्लाह तबारक व तआला जाहिरी खूबियां दोनों में बराबर होने के बावजूद हजरत उमर का इंतखाब इस्लाम के लिए क्यों फरमाया? दोनों में से अबू जहल भी इस्लाम ला सकता था हुजूर की इस दुआ के पेश नजर, हजरत उमर क्यों इस्लाम कबूल किए वो बात सुनिए। बात सिर्फ ये थी कि जब किसी के सामने नसीहत आती है, जब किसी के सामने हिदायत की बात आती है तो उसका नफ्स उस बात को लेने के लिए झुकता है या नहीं है? नसीहत की हक बात आने के बाद, हक बात आने के बाद भी अपने नफ्स पर कोई अड़ा रहता है, भाई मैं क्यों ये इसकी बात सुनूं, मैं पहले से अच्छा हूं, किसी की नसीहत को लेने की मुझे जरूरत नहीं। जिसका नफ्स दरमियान में आता है, जिसके नफ्स में झुकने की आदत ना हो, उसको अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मालामाल होने का मौका नहीं मिलता। यही वाकया हुआ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अब अपने घर से निकलकर खाने काबा के तरफ से गुजर रहे थे। अब मौका देखिए, खाने काबा के पास कुरैश के चंद सरदार बैठे हुए हैं, चंद सरदार बैठे हुए हैं और वो आपस में मशवरा कर रहे हैं। अब ये जो वाकया मैं अर्ज कर रहा हूं, ये वाकया समझ कर न सुने, ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि वो खूबियां जो अबू जहल में भी है, उमर में भी है, मगर ये दो खूबियां दोनों में होने के बावजूद हजरत उमर को इस्लाम की दौलत क्यों नसीब हुई, अबू जहल क्यों महरूम रह गया? उसकी वजह यह है कि अबू जहल का नफ्स झुकने के लिए तैयार नहीं था, उनके नफ्स में जरा बराबर भी नसीहत कबूल करने की सलाहियत नहीं थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर रोब और दबदबा, बहादुरी, एक किस्म का वजाहत होने के बावजूद आपने नसीहत को आने के बाद अपने नफ्स को झुका दिया। जब तक किसी की बात को सुनने के लिए अपने आप को नहीं झुकाएंगे, मैं अच्छा हूं जैसा भी हूं, ये जब तक नहीं निकालेंगे हमें नसीहत मिलेगी ना हिदायत मिलेगी। पहले अबू जहल का वाकया सुने। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, जंग बदर में जब लड़ने के लिए अबू जहल आया तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू जहल से मुलाकात करते हैं, किसी एक कोने में ठहर कर पूछते हैं, क्या अबू जहल तुझे क्या हो गया?
اے عمر بن हिशाम तुझे क्या हो गया, तू तो हमारे दरमियान बहुत समझदार आदमी था। अबू जहल वो आदमी था जो लोगों के फैसले करता था, लोगों में झगड़े हो जाते तो लोगों में दरमियान फैसले करता था कि क्या सही है क्या गलत है, फैसले करता था। लोग फैसले करवाने के लिए उसके पास जाते थे। तो अब्दुल्ला बिन मसऊद ने पूछा कि ए अमर बिन हिशाम, इसका नाम अमर बिन हिशाम था, पूछा कि तू लोगों के फैसले तो करता था मगर अपनी आखिरत का फैसला क्यों नहीं कर सका तू? लोगों के झगड़े होते, उनके नफा और नुकसान के मसाइल आते तो तू फैसला करता था, मगर जब तेरी जात के फायदे के बारे में, आखिरत के फायदे के बारे में मसला आया तो तू क्यों फैसला नहीं कर सका? क्या तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में नहीं आया? क्या तुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम और आपकी बताई हुई बातें समझ में नहीं आई? तो अबू जहल ने हंसकर जवाब दिया, कहा ऐ अब्दुल्ला, ये बातें तो तुम्हें बाद में समझ में आई, बहुत समझाने के बाद तुम्हें समझ में आई, मुझे उसी पहले दिन ही मोहम्मद की वो बात समझ में आ गई जिस दिन उन्होंने पहली बार जबल अबू कैस पर ठहरकर ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया था। ला इलाहा इल्लल्लाह जिस दिन कहा था उसी दिन मुझे बात समझ में आ गई। समझ में आ गई, समझ में आने के बाद अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये गौर कीजिए, अक्सर लोगों को मालूम है, बात समझ में आती है, झूठ नहीं बोलना गुनाह है, मालूम है ना, फिर क्यों बोल रहे हैं? हराम नहीं खाना गुनाह है, फिर क्यों कर रहे हैं? दुनिया छूटने वाली है, आखिरत हमेशा की है, फिर तो दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। एक बात मालूम हो जाना अलग बात है, मालूम होने के बाद उस बात को अपनाना, उस बात के सामने अपने नफ्स को सरेंडर कर देना, यह अलग बात है। ये चीज है। अबू जहल कह रहा है मुझे समझ में आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, अल्लाह के सिवा कोई हमारा हाजत रवा नहीं है, मुझे मालूम हो गया। अब वो सारे बुतों को हटाना चाहते हैं कि कोई शय कायनात में हमारी हाजत को पूरा करने वाली नहीं है, ये कहना चाहते हैं, मुझे मालूम है, मगर मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह से प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कलीमे का दूसरा हिस्सा है, मुझे इससे इख्तिलाफ था। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में एतराज नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह में एतराज इसलिए है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो भी पढ़ता है उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी जरूरी हो जाएगी। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए तो झुकने तैयार हूं, मगर किसी मोहम्मद का गुलाम होने मुझे पसंद नहीं है। मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनना नहीं चाहता। मैं पहले से सरदार था, आज तक ये कलीमा पढ़ने से पहले तक लोग मुझसे फैसले कराने आते थे। अगर मैं ये कलीमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं तो मैं अपने फैसले कराने के लिए मोहम्मद के पास जाना पड़ता था, ये मुझे पसंद नहीं था। लोग मेरे पास आए मैं किसी के पास ना जाऊं, लोग मेरे सामने झुके मैं किसी के सामने ना झुकूं, लोग मेरे ताबे में रहे मैं किसी के ताबे में ना रहूं, ये नफ्स है नहीं है। अब हर शख्स चाहता है कि मैं जो समझता हूं जो करता हूं वो सही है, दुनिया कोई मुझे न टोके, ये समझना किसकी सिफत है? इसकी ये जो सिफत है, ये जो आदत है वो अबू जहल की आदत थी। ये इस एक आदत ने अबू जहल के तमाम खूबियों पर पानी फेर दिया और मुसलमान नहीं हो सका। अब आइए, अब इसके बारे में तो ये तो मरदूद हो गया, ये मर गया बदर के मैदान में, जहन्नम में गया हुजूर ने फरमाया, और इस उम्मत का फिरौन बना। अब इसका छोड़िए, अब आइए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के तज़किरे की तरफ, और आपके अंदर अब इसको बैलेंस कीजिए, बिल्कुल दो को टैली करके देखिए कि इसके अंदर वो कौन सी खराबी थी अबू जहल में जिसकी वजह से महरूम हो गया, हजरत उमर में कौन सी बात है जो इस्लाम में आया। पहले ये मालूम तो होना चाहिए कि मुझे नसीहत की जरूरत है। याद रखे, जब तक इंसान अपने आप को मैं अच्छा हूं समझता है, इसके अच्छा नहीं होने की यही एक अलामत है। बस मैं तो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूं, ये जो समझ गया मुझे मेरे अंदर कोई और खामी नहीं है, किसी और के समझाने की जरूरत नहीं है, ये गया। याद रखिए, जिंदगी में अगर हमें गाइडेंस करने वाला है, हमें नसीहत करने वाला है, चाहे वो पीर की शक्ल में हो, उस्ताद की शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो, माँ बाप की शक्ल में हो, ऐसा शख्स कभी बर्बाद नहीं हो सकता जिसकी जिंदगी में कोई नसीहत करने वाला ना हो। जब ऐसे सब मर जाए, अब उसके लिए हिदायत, अब उसके लिए दुनिया में बहुत सी ठोकरें उसके मुकद्दर हो जाएगी। याद रखें,
घर में माँ बाप बूढ़े हैं तो उनको बेकार समझते हैं हम, ये तो काम के नहीं है। अरे काम के तो वही है, कोई एक नसीहत करने वाला है। इंसान अपने हर मसले को हक पर देख नहीं सकता। हम सामने देख, जाहिरी बात तो देखिए, सामने का हिस्सा देख सकते हैं, पीछे क्या हो रहा मैं क्या देख सकता हूं? ये जाहिर में ही मालूम हो रहा है, पीछे क्या है मैं नहीं देख सकता। अल्लाह इंसान को सामने आंख देकर बताया कि इंसान तुम मजबूर है, तू सिर्फ सामने देखने पर कुदरत रखता, चाहे तेरी आंख कितनी अच्छी हो, कितनी खूबसूरत हो, पीछे क्या है तू देख नहीं सकता। ये बता रहा है अल्लाह तबारक व तआला हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के जरिए से कि तू अपने पीछे के मसाइल के लिए किसी और को तलाश कर, तू खुद से अपने मसाइल हल नहीं कर सकता। वहां तुझे झुकना पड़ता है, मैं कामिल व अकमल हूं, ये समझना छोड़ दे। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाल देखिए, मैं बात मुख्तसर कर रहा हूं। हजरत उमर घर से निकले, किसी काम के लिए जा रहे थे, खाने काबा की तरफ देखा कि वहां चंद अरब के सरदार या मुशरिकीन जो थे वो सब बैठे हुए हैं। अभी इस्लाम का नया नया दौर है, इलाए कलिमतुल हक का नया दौर है, वो सब बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। हजरत उमर की सवारी घोड़ा वहां से गुजरा तो वहां रुक कर पूछते हैं, अबू सुफियान ये मीटिंग कैसी है, क्या बात कर रहे हो? कहा कि हमारे दरमियान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक नया मसला, नया दीन लाकर बता रहे हैं। वो इन तमाम बुतों के खिलाफ बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कायनात को परवरिश करने वाला सिर्फ एक परवरदिगार है। ये सब हजरत उमर ने सुना तो कहा कि ये बकवास छोड़ो, क्या करना चाहते हो वो बताओ। कहा कि हम वही सोच रहे हैं कि उस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को हम कैसे हटाए इस काम से, कैसे उनको रोके। तो हजरत उमर ने फरमाया, भाई काम से रोकने की बात क्यों करते, जो काम लेकर आया है उसी को हटा देंगे तो मसला साफ हो जाएगा ना। यानी ऐसी कौन सी चीज पेश करेंगे हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास के पेश करेंगे जिसकी वजह से वो इस्लाम और कलीमे तैयबा के तालीम को छोड़ दे। वो ये कह रहे थे, हजरत उमर ने फरमाया चलो हम उनका काम तमाम कर देंगे, यानी कत्ल कर देंगे नौज बिल्ला, तो फिर मसला ही साफ हो जाएगा, बेहतर इलाज है वो। तो उन्होंने कहा तो फिर ये काम कौन करेगा? कहा कि एक आदमी को मानने के लिए इतनी मीटिंग की जरूरत क्या है, मुझे दे दो, मैं वो काम तमाम करके आऊंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात की तरफ निकले कि मैं उनको काम सफाई करके आऊंगा। ये बात थी हजरत, ये जलाल था, ये सिफत थी। अगर कोई काम बुरा है तो उसको फौरन मेट देना, ये फितरत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर थी। लेकिन वो काम सही है या गलत है मालूम होने के बाद फैसला होगा। हजरत उमर अपनी सवारी को मोड़े और जाने लगे और तलवार निकाला अपने नियाम से और जा रहे थे। रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात होती है जिन्होंने अभी अपने इस्लाम को जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा, उन्होंने इस मंजर को देखा तो समझ गए कि कुछ बड़ा मसला ही है, बड़ा मसला। ये पूछा कि उमर किधर जा रहे हो? कहा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का काम तमाम करने के लिए आया हूं, वो नया दीन पेश कर रहे हैं। तो हजरत उमर ने फरमाया, अरे हमारी बात तो छोड़ो, पहले जा उनकी बात तो छोड़ो और पहले अपने घर में जाओ। तुम्हारी बहन खुद उनकी गुलाम हो चुकी है, तुम्हारे बहन भी खुद इस्लाम ला चुके हैं, वहां जाओ। हजरत उमर को और गुस्सा आया, अगर मैं जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करूंगा तो पहले मेरे घर पर हर्फ आएगा कि तुम्हारे घर में खुद इस्लाम है, वहां का ख्याल नहीं करे, बाहर बोलने निकले क्या? ये बात देखिए, ये फितरत देखिए। भाई ये बात अर्ज कर रहा हूं कि आपको अल्लाह ने जो सोच दी है कि सामने वाले को इस्लाह करने से पहले अपने अंदर से खामी को दूर करो, ये फितरत पहले से थी, ये खूबी पहले से, ये खूबी पहले से थी। इसीलिए आप अपने सवारी को मोड़ा और अपने घर बहन के घर गए। बहन के घर गए तो क्या दरवाजा दस्तक देते हैं, कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी, दरवाजा दस्तक दिया, अंदर बहन और बहन भी एक और सहाबी के पास बैठकर कुरान पढ़ रहे थे। दरवाजा दस्तक दिया और जोर जोर से मारने लगे। बहन ने दरार से देखा दरवाजे के भाई आए हुए हैं और चेहरे पे जलाल के आसार है, हाथ में नंगी तलवार है। ये मंजर देखकर अपने शौहर से कहने लगे, मसला कुछ खराब है, आप लोग अंदर जाए, मैं उनसे बात करूंगी। दरवाजा खोला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अंदर दाखिल हुए। अभी कुछ फरमाया ही नहीं, जोरदार थप्पड़ अपने बहन के गाल पे मारा, इतना जोरदार मारा कि कान की लौ फटकर खून बहने लगा।
पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मुसलमान हो चुकी हो, तुम इस्लाम में दाखिल हो चुकी हो, क्या ये सही है? हजरत उमर से बहन कहने लगी, हाँ भाई मैं बिल्कुल इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूँ, मुझे अब कौन रोक नहीं सकता। हजरत उमर ने ये सुना और कुछ नहीं पूछा, इस्लाम क्या है, क्यों मुसलमान हुई है, इसमें क्या खूबी है, कुछ नहीं पूछा और मारना शुरू कर दिए। मारते गए, अब मार कर ये हाल कर दिया कि अब बता इस्लाम छोड़ देगी या इतने जख्मों के बाद अब तो अपने जान के लिए इस्लाम को बचाएगी। अब तो मार के तो खत्म हो गया, अब बारी है तेरे जान लेने की, अगर अब भी तो इस्लाम नहीं कबूल करे, इस्लाम नहीं छोड़ेगी, मैं तेरी जान लेने पीछे नहीं हटूंगा। हजरत उमर के ये कहने पर अब आपकी बहन मुस्कुराती है, कहती है भाई तुम्हारा इख्तियार तो मेरे जिस्म पर है और इस्लाम का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, वो दिल से है। मेरा दिल मुसलमान हो चुका है, तुम मेरे जिस्म को तो मार सकते हो, मेरे दिल को नहीं मार सकते। तुम मेरे जिस्म पर तुम्हारा इख्तियार है, मेरे दिल पर अल्लाह और उसके रसूल का इख्तियार है, इससे कलीमे को नहीं निकाल सकते। मुसलमान ये होता है, मुसलमान ये होता है उसके जिस्म पर ज़ाहिरी हालात पर कैसे ही मुश्किलात आ जाए, कैसे ही हालात आ जाए, वो उन हर हालत को सामना कर सकता है, मगर अपने दिल से ईमान को छोड़ नहीं सकता। जब हमारे सामने हक और बातिल आ जाए, जब हमारे सामने झूठ और सच आ जाए, जब हमारे सामने हराम और हलाल एक साथ आ जाए, उस वक्त हमारा फैसला होगा कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में मुसल इस्लाम है या कोई और है। अगर अल्लाह के जात पर मर मिटने का जज्बा है तो वह हर एतबार से अपने आप को इस्लाम पर और इस्लाम के अहकाम पर कुर्बान कर देगा। बहन कह रही है कि उमर मार लो, जब करना चाहते हो कर लो, अब ये हाथ से दामन छूट नहीं सकता मोहम्मद मुस्तफा। ये बात थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सख्ती में आ गए। ये एक बात से आपका गुस्सा उतर गया, भाई वो कौन सी बात है इस्लाम में, वो कौन सी बात है, खुसूसियत है आकाए दो जहां में कि एक इंसान और औरत जात होकर अपने जान को गंवाना चाहती है मगर छोड़ना नहीं चाहती आपके दामन को। वो कौन सी बात है? इंसान के पास सबसे महबूब चीज उसकी जान होती है, कोई और चीज नहीं। जान के वास्ते हर चीज कुर्बान कर देता, जान के लिए किसी चीज को नहीं छोड़ता। और ये कह रही है अब इब्तिदाए इस्लाम है, अरे अभी नमाज फर्ज नहीं हुई यार, उस वक्त का हाल है, रोजा फर्ज नहीं हुआ। ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ा, रोजा भी नहीं रखा, ज़कात भी नहीं दिया, हज भी नहीं किया। क्या किया फिर? सिर्फ कलिमा पढ़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी हम नमाजों को देख रहे ना, मुसलमान कितने नमाजें पढ़ा उसको, उम्रे भी उम्रा किया, हज किया, उसको मुसलमान समझ रहे। अरे कलिमा ही अंदर नहीं उतरा, अभी दिल में, दिल के दरूने में अभी ईमान नहीं खुला, ईमान की लज्जत अभी नहीं मिली। और हाल यह है, ईमान जब आता है और कलिमा जब दिल में पैवस्त होता है, उस मुसलमान के अंदाज अलग होते हैं। यहां ये कहा तो हजरत उमर खामोश हो गए और कहा बताओ कि तुम पढ़ क्या रही थी, पढ़ क्या रही थी? उस वक्त अंदर से खब्बाब बिन अरित एक सहाबी जो कुरान पढ़ा रहे थे, वो अंदर से बाहर। अब आइए जो बात अर्ज करना है, जो बात हमारे उन्वान का बुनियाद थी, आप अब वो आए और कुरान पढ़ने लगे, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीसु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फ़अौहा इला अब्दिही। अब यहां से बात चली, यहां से बात चली, ये आयत चली है, मुख्तसर कर रहा हूं। ये पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे एक एक आयत वहां पढ़ते जाते, हजरत उमर के अंदर से कुफर का रंग उतरता गया, ईमान का रंग चढ़ता गया, ईमान का रंग चढ़ता। क्या कह रहा है? ये क्या है? तो मा अंज़लना अलैका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ये कुरान क्या है? ये नसीहत सिर्फ उसके लिए है जो डरने वाला है। जिसके दिल में डर नहीं है, ये कुरान उसके काम का नहीं है। कुरान रख लेने से वो मुसलमान नहीं है, जिसके अंदर डर है कुरान उसके लिए एक्टिवेट होता है। अब जब पहुंचते पहुंचते जब बात पहुंची
व अनख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, बस उसी की इबादत करो। जब इस आयत पे पहुंचे हजरत उमर की आंखों से आंसू निकल गए। बात वही है, कुरान सबके सामने पेश हुआ। यहाँ ये आने के अपने कुफर पर नहीं, अपने नफ्स को झुकाने का मौका आया तो झुका दीजिए। ये डरने वाले के लिए है तो फौरन, अब ये इस्लाम है, कुफर के साथ अब कुफर और इस्लाम का जंग शुरू हो गया आपके बातिल में। एक जंग तो मैदानों में होती दोस्त, उस जंग को हटा दे, वो कभी और होती है, लेकिन एक जंग कुफर और इस्लाम की हर मोमिन के दिल में हर आन होती है। जब भी कोई गलत काम सामने आता है तो उस वक्त इस्लाम और कुफर की जंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर इज्जत है कि अगर मैं जाकर हुजूर को खत्म नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत क्या होगी। मैं अब तक सरदार था, अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो मैं सरदारी से हट जाऊंगा, गुलाम हो जाऊंगा मोहम्मद मुस्तफा का। अब दोनों इख्तियारात सामने रखे गए हैं। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि इसमें असर है, ये बात जो सामने बयान की जा रही है ये बात हक है। अब नफ्स इसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इधर सरदारी याद आ रही है, इधर अपना बड़ापन याद आ रहा है, और इधर इस्लाम और अल्लाह का मंशा याद आ रहा है। आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया। कहा बहन जरा वो किताब मुझे तो दो, मैं तो थोड़ा पढ़ूंगा। 40 मुसलमान हुए तो बताइए कुरान कितना नाजिल हुआ। पूरा कुरान रख के भी आज मुसलमान महरूम। वहां चंद आयात थी, पूरा कुरान पढ़ने से, पूरा कुरान सुनने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग नहीं बदले। चंद आयतें उनके सामने तिलावत हो गई तो उनकी दिल की दुनिया बदल गई। कुरान पूछे अब वो किताब मुझे तो दो, मैं भी पढ़ूंगा। कहा कि ऐ उमर तुम नापाक हो, नजिस हो, ये कुरान पाक परवरदिगार का पाक कलाम है, ये तुम नहीं पढ़ सकते। पाकी का मतलब वुजू गुस्ल नहीं है, वुजू करो गुस्ल करो का मसला नहीं है। ये कह रही है कि तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, अभी कुफ्र और शिर्क है। ये और बात है, हजरत उमर जमाने जाहिलियत में भी कभी मुशरिक नहीं थे, कभी शिर्क नहीं किए। तुम्हारे अंदर कुफ्र है, वो कुफ्र इस किताब को पकड़ने की इजाजत नहीं देता, पहले ईमान लाओ। आप फरमाते हैं चलो मुझे भी ले चलो उस बारगाह में जहां से तुम्हें दौलत मिली है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ जाते हैं। उधर सरकार दो आलम दार अरकम में तशरीफ फरमा है। दार अरकम एक घाटी थी पहाड़ की, वहां पर सारे सहाबा इब्तिदा में बैठते थे और आका दो जहां की सोहबत में तालीमात हासिल करते थे। सहाबा ने दूर से हजरत बिलाल ने देखा कि उमर आ रहे हैं, देखे ये शायद कुछ गड़बड़ करने के लिए आ रहे होंगे, उन्हें नहीं मालूम कि हजरत उमर का दिल बदल गया। वहां से देखकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला हुजूर से कहते हैं या रसूल अल्लाह गजब हो गया, उमर आ रहा है। हजरत अमीर हमजा इस्लाम ला चुके थे, उन्होंने कहा अगर उमर की नीयत ठीक है तो अच्छी बात है, अगर उनके नीयत में कोई गड़बड़ करना है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। हजरत हमजा ये कह रहे थे, हुजूर ने फरमाया उमर का रास्ता छोड़ दो। इधर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए थे और अपनी दुआ को उसके रंग को देखना चाहते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी तशरीफ लाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते हैं। अभी कलिमा पढ़ने में अभी आगे पीछे सोच ही रहे थे, हुजूर ने आपके गिरेबान को पकड़ा। क्या लम्हे थे उनके जिंदगी के। हुजूर ने उनके गिरेबान को पकड़ा कुर्ते को और खींच कर कहा अमा आन लका या उमर अंतशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। ऐ उमर दुआ करके तो एक दिन गुजर गया, क्या अभी तुम्हारे लिए वो वक्त नहीं आया कि तुम अल्लाह की जात की शहादत दे सकते? क्या अभी वक्त नहीं आया ईमान लाने का? हजरत उमर चीख पड़े, कहने लगे कद आन या रसूलल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल वो वक्त आ गया कि उमर भी मुसलमान हो गया। अब आप सहाबा फरमाते हैं उमर आने की वजह से इस्लाम को और हमको इज्जत मिली। उमर आने के बाद हमारे अंदर जो हिम्मत हुई उससे पहले वो हिम्मत नहीं। तो बात सिर्फ याद करना था कि अल्लाह तबारक होता है वो कौन सी खूबी आपके अंदर रखी। नफ्स तो झुकाओ दोस्त, इसके बगैर नहीं है। अपने आप को जब तक नहीं झुकाएंगे, अपने अंदर तकब्बुर को बरकरार रखेंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने और आपको खूबियां अता फरमाई, आपको बेहद खूबियां अता फरमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत
اسلام کو عزت پوچھا، قیامت تک کے لیے اسلام کے اندر عزت کے بڑے بڑے جو پہلو ہے اللہ نے وہ کام حضرت عمر سے لیے۔ شراب جو بند ہوئی، پہلے شراب حلال تھی، لیکن آپ کے کہنے پر آپ نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ کیوں یہ شراب کو حرام نہیں کرتا، اس کی وجہ سے یہ جو پیتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اگر اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کر دیتا تو ذلت ختم ہوتی اور مسلمان باعزت بنتا۔ شراب اللہ نے آپ کے اس بات پر شراب کو حرام کیا۔ پہلے بے پردے کی آیت نہیں تھی، ایسے ہی پھرتے تھے، کوئی حکم خاص نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کاش اللہ تبارک و تعالی پردے کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دیتا اور عورتوں کو کسی خاص پردے میں کسی خاص پردے کے ساتھ مخصوص کر دیتا تو اچھا تھا۔ یہ کہنا تھا پردے کی آیتیں اتری آپ کے کہنے پر، بھئی یہ بندہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ کتنا فنا ہو گیا ہوگا اپنے آپ سے۔ یہ بندہ حضرت عمر اتنا فنا ہو گئے اپنے آپ سے کہ آپ کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن میں احکام اتار رہا ہے، اور ہم تو وہ ہے جو اللہ کا منشا اتر گیا اس کو اپنانے کے لیے ہمارے پاس صلاحیت نہیں، اللہ کے مرضی کو قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس موقع سہولت نہیں ہے، بہانے بناتے ہیں۔ اور حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منشا کے مطابق جیسا جیسا آپ چاہ رہے ہیں قرآن اتار رہا ہے۔ اے عمر، تم نے شراب کو حرام قرار دینا چاہتے ہو، تم لو میں شراب کو حرام کر دیا۔ تم پردے کو چاہتے ہو، لو میں پردے کو عام کر دیا، پردے کا حکم اتار دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آج کیوں 1400 سال گزر گئے، 1443 سال گزر گئے، آج بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو بندہ اپنے نفس کے منشا کو چھوڑتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، ان کے مر جانے کے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، ان کے نبی کے قدم پر چل کر اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔